Chapter 9, New Economic Policy. New economic policy is related to economic reforms. Its aim is to bring about reform in production pattern, to obtain new technology, and to use full capacity expenditiously and in toto. प्रोडक्शन पैटर्न को चेंज करने का न्यू टेक्नोलॉजी अपनाना इसका उद्देश्य था. New economic policy was devised and implemented for the first time in year 1985 during the period of Prime Minister Rajiv Gandhi. The second wave of new economic reforms came in the year 1991 during the period of P.V. Narasimha Rao government. The main reason to start new economic policy was Gulf War and problem of balance of payment in India. बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स हम जो बाहर से आयात कर पाते हैं तो उसके लिए फॉरेन करेंसी का क्राइसिस हो गया था. तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया था और गल्फ वॉर चल रही थी. उस वजह से हमें क्या करना पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को स्टार्ट करना पड़ा. तो इसके दो रीज़न थे, गल्फ वॉर एंड प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया. दीज आर द टू रीजन. Three main objectives of new economic policy were liberalization, privatization and globalization. Liberalization यानी उदारीकरण, privatization यानी निजीकरण, globalization. Okay. Main sector of new economic reform policy were fiscal policy में, monetary policy में, value fixation policy, foreign policy, industrial policy, foreign investment policy and business policy, public sector policy. These are the main sector of new economic reform policy: fiscal, monetary, value, foreign, industrial, foreign investment policy, business policy, public sector policy. Now, economic reform were introduced in 1991 in India. First generation reforms were aimed at stabilizing of Indian economy and were macro level in nature. These was macro level in nature. Financial sector reforms, taxation reform etc. इसमें आएंगे. फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म आएंगे तो टैक्सेशन रिफॉर्म इसमें आएंगे फर्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म में, जो कि मैक्रो थे. ठीक है, दो आते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड टैक्सेशन रिफॉर्म. तो फर्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म है. नाउ सेकेंड जनरेशन के रिफॉर्म क्या थे? इट एम्ड एट स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड आर माइक्रो लेवल इन नेचर. इट विल इंक्लूड लेबर रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म. सो फर्स्ट सेक्टर यानी फर्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म में तो था हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड टैक्सेशन रिफॉर्म. एंड जो सेकेंड जनरेशन के रिफॉर्म हैं उसमें हमारे हैं लेबर का रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स. Since economic reform, poverty has been declining from 36% in 1993 to 26% by the end of 10th plan. So economic reform से क्या हुआ, जो हमारी पॉवर्टी थी वो 36% जो थी हमारी 1993 में, उससे डिक्लाइन होकर 26% रह गई हमारे 10th 5 year प्लान की टाइम पे. बट ए फार एज इनइक्वलिटी इज़ कंसर्न्ड, पॉवर्टी कम हुई बट इनइक्वलिटी असमानता, गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीर हो गए, तो वो इंक्रीज़ हुई है इनइक्वलिटी. ए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसकी रिपोर्ट है 1999 to 2000 कन्फर्म्स दिस राइज इन इनइक्वलिटी. उसमें इस चीज़ पे कंफर्म किया है कि इनइक्वलिटी बढ़ी है. द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी बाय मेकिंग प्रोग्रेस फ्रॉम 1991 to 2005 and 6 हैज़ बिकम मोर ओपन, लिबरल एंड ग्लोबल. जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी है
वो 1991 से 2005 एंड 6 मोर ओपन, लिबरल एंड ग्लोबल. Disinvestment means to decrease the share of government in the industries. In 1996, Disinvestment Commission was constituted. तो disinvestment commission कब आया हमारा? 1996 में. To review, give suggestions and make regulation on the issue of disinvestment. Shri G.V. Ramakrishna was the first chairman of this investment commission. Who was the first chairman of this investment commission? So Shri G.V. Ramakrishna was the first chairman of this investment commission. In the year 1992, National Renewal Fund was constituted for the rehabilitation of displaced laborers of Sikh industrial unit. तो जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सिख है, जो यानी कमज़ोर है, अभी बीमारू है, उनके जो लेबर्स थे उनका रिहेबिलेशन करना है, यानी उनको कहीं अलग जगह लगाना है ताकि उनका नुकसान ना हो. तो उसके लिए 1992 में नेशनल रिन्यूअल फंड को बनाया गया, जो कि किस वजह से अफेक्टेड थी, जो हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट थी, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, वो उसमें नहीं था. Navratna is a company which is rising at world level. To encourage these companies, the government has given them complete autonomy. तो नवरत्न को गवर्नमेंट ने क्या दे दिया? कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दिया. In the second phase of economic reforms program, the main aim is to eradicate poverty from the country and development at a rate of 7 to 8%. अब इसमें टेक्नोलॉजी रिलेटिंग टू न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. फर्स्ट है प्राइवेटाइजेशन. टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द पब्लिक सेक्टर कंपनीज बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बाय मैनेजमेंट और बोथ, और टू हैंड ओवर ए पब्लिक सेक्टर यूनिट टू प्राइवेट कंपनी इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मतलब जो हमारी पहले पब्लिक सेक्टर में थी सारी कंपनीज, और पब्लिक यानी हमारा गवर्नमेंट था, उसका आधिपत्य था सारी यूनिट्स पे, तो उसे प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें भागीदारी करने देना, उनको भी शेयर देना, अपने शेयर बेचना, या उनका जो अधिकार है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ आना, वही प्राइवेटाइजेशन है. लिबरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट कंट्रोल इज़ रिलैक्स्ड एंड ओवर अबोलिस्ड. या तो कम हो जाएगा गवर्नमेंट का कंट्रोल या ख़त्म हो जाएगा. इन दिस प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन इज़ आल्सो इंक्लूडेड. इसी प्रोसेस में प्राइवेटाइजेशन भी आता है, जैसे कि हमने पढ़ा था. ग्लोबलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ एमलगमेशन ऑफ एन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. यानी हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसे वर्ल्ड इकोनॉमी से मिलाना, वहाँ का सामान हमारे यहाँ आ सके, हमारा सामान वहाँ जा सके, ईजिली जो है व्यापार हो सके वर्ल्ड लेवल पर, तो वही वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन है. इट इज़ सिग्निफाइड बाय द लोअर ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. कम कर लगा उस पर, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर. बाय डूइंग सो दैट सेक्टर विल आल्सो गेट प्राइवेट कैपिटल एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी. ये करेंगे तो क्या होगा? इस सेक्टर को भी हमारा प्राइवेट कैपिटल एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी अच्छे से मिल पाएगी. डिसइन्वेस्टमेंट. टू रिड्यूस द गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. यानी हमें गवर्नमेंट का जो शेयर है उसको पब्लिक सेक्टर में करना डिसइन्वेस्टमेंट है, उसको कम करना गवर्नमेंट शेयर को.